Hello, good evening students. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Today students we are going to talk about a very important topic, that is about zero order reaction, about zero order reaction. And there are three important graphs which are given in NCERT books, and they are also very important for a board examination also. First of all, student, you should know that what is zero order reaction. So you have studied that in rate law. You should also know that what is rate law. According to rate law, the rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant. Okay, so suppose I am having this reaction where R stand for reactant and P is product, and as we were discussing about zero order reaction, so according to rate law, rate of reaction will be equal to K. K stands for rate constant, and this is molar concentration of reactant, and its power will be 0. Okay, in case of zero order reaction, the rate of reaction is directly proportional to 0 power of concentration. ठीक है, तो जो मोलर कंसंट्रेशन होता है उसके ऊपर जब एक्सपोनेंट जो पावर लगी होती है अगर वो 0 होती है तो ऐसी रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पहले तो पता होनी चाहिए. उसके बाद में जब आप देखोगे बुक में भी तो एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी हुई है, जिसको आप ऐसे लिखोगे -dr/dt. यहाँ पर R का मतलब रिएक्टेंट है और इक्वल टू K, और इसको मैं फिर ऐसे लिख लेता हूँ. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे R की पावर 0 है तो ये जो टर्म है यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1. ठीक है, किसी की पावर 0 मतलब वो 1 हो जाता है. तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये dr/dt विल इक्वल टू अपना K आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R की पावर 0 है तो ये टर्म पूरा 1 हो जाएगा और K आ जाएगा. ठीक है, एंड देन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स इट विल बिकम -dr is equal to K multiply by dt, and then we will do integration, and after integration this equation, and before doing integration we have to do one more thing. We have to remove this negative sign. So the equation, you can write this equation in this way also: dr is equal to minus K multiply by dt. Okay, and when you will do integration of this, you have to remove this differentiation, then it becomes R is equal to, that this R means this is a molar concentration of reactant, R is equal to minus K T plus I. Okay, where I represent, this is constant of integration, this is constant of integration. Hoping you are able to understand what I want to tell you. So this is equation, and student, if we will write t is equal to 0, means when time is equal to 0, at this condition your initial concentration is equal to final concentration. Okay, जब टाइम 0 होता है उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन अपना दोनों ही बराबर होते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम रखेंगे 0 इस वाली इक्वेशन में,
और ये जो R यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे R0, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो R0 इज इक्वल टू माइनस का K मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि हमें टाइम 0 रखा हुआ है अभी, ठीक है, और आपका हो जाएगा ये I यहाँ पर। देन R0 इज इक्वल टू, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा I, ठीक है। इसके बाद में देन व्हाट वी कैन डू इज you have to put this value of I in this equation। ये जो I है इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दें। I की वैल्यू कितनी है अभी, R0 की इक्वल है, ठीक है। तो ऊपर जो इक्वेशन है वहाँ पर देखो आप ज़रा, R इज इक्वल टू माइनस का K मल्टीप्लाई बाई T और प्लस ये जो I लिखा हुआ था, इन प्लेस ऑफ I विल राइट R0। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ पर, और इसी इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जो कि R वर्सेस टाइम प्लॉट किया गया है। तो वो ग्राफ हमें प्लॉट करना है, वही अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब कभी भी ग्राफ आपको प्लॉट करना हो स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। इस वाली इक्वेशन से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें x एक्सिस पे क्या रखना है, y पर क्या रखना है और स्लोप अपना क्या होगा, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो m है ये हमें स्लोप देता है, ठीक है, ये हमको स्लोप देगा। और x एक्सिस पर हम लोग टाइम को रखेंगे, y एक्सिस पे हम लोग रखेंगे r को। और अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके इसका स्टूडेंट्स मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहीं पर ही मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं, और कोशिश करो आप भी इसको समझने की ग्राफ को। तो ये यहाँ पर रखा मैंने, y एक्सिस पे क्या रखा हुआ है मैंने, अपना r है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर है, और x एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ठीक है। x एक्सिस पे टाइम है अपना, तो ये मैंने लग लिया t, यहाँ पर टाइम ले लो। और जो m है ये हमें स्लोप दे रहा है, और स्लोप कैसा है अपना, नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पे देखो जो k की वैल्यू है वो माइनस की है। तो जब कभी भी स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ को आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और जो स्लोप है अपना आप उसको लिख लेंगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस k, and k is what, k is nothing but its rate constant, okay। So hoping you understood that what is zero order reaction, those reactions in which I am also writing definition of this on the next page, students. So you just try to get it. What is zero order reaction, students? Those reactions in which rate of reaction is proportional to rate of reaction is proportional to zero power, okay, zero power of concentration of reactant,
ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में अब इस टॉपिक में केवल मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को ही ले रहा हूँ और इसको कवर करेंगे यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कम्प्लीटली। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखोगे कि बुक में एक एग्जांपल दिया गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on platinum surface. ठीक है, तो अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन किया जाता है प्लैटिनम के सरफेस पे तो ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है ना। अब अगर मैं रिएक्शन को लिख करके देखता हूँ तो रिएक्शन में जब इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ और हमें लगेगा। जैसे अगर रिएक्शन लिखता हूँ तो रिएक्शन होती है इस तरीके से, ट्वाइस ऑफ NH3 गिव्स N2 + 3H2। ये रिएक्शन है अपनी। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे रिएक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो जो ऑर्डर होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूँ इस वाली रिएक्शन के लिए तो क्या होना चाहिए, R = K और ये NH3 क्योंकि रिएक्टेंट है तो यहाँ पर आएगा NH3 और यहाँ पर पावर हो जाएगी 0 इसकी, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, देख वैसे है तो यहाँ पर 2 लेकिन पावर में आएगा 0 क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और सबसे ख़ास बात है स्टूडेंट ये है कि ये जो रिएक्शन हो रही है दिस रिएक्शन इज़ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ओके, यहाँ पर प्लैटिनम कैटलिस्ट है और जो भी रिएक्शन मेटल के सरफेस पे होती हैं जनरली, मतलब ये बहुत ही रेयर केस होते हैं, वो ज़ीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स होते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखो कि आपसे पूछा जाएगा कि ये ज़ीरो ऑर्डर का एग्जांपल कैसे है या क्यों है। तो यहाँ पर जो प्लैटिनम है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो गैसेस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय पर जो प्लैटिनम की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद में आप कंसंट्रेशन अमोनिया को कम करो या बढ़ाओ, उससे रिएक्शन की रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बात यह है कि एट हाई प्रेशर surface of at high pressure surface of platinum is saturated with ammonia। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्लैटिनम की सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से आप फर्दर कंसंट्रेशन को कम करो या उसको बढ़ाओ तो रिएक्शन की रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोज रिएक्शंस in which rate of reaction is independent of concentration of reactant। ठीक है, मतलब ऐसी रिएक्शन
जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है, उन्हें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है या बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अब जैसे यही रिएक्शन जो हमने ऊपर लिखी थी अभी, इस रिएक्शन में क्योंकि यहाँ पर पावर में ज़ीरो है और अगर आप इसको आगे सॉल्व करो तो R इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, है ना। तो आप देखोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यही एक एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा एक एग्जांपल और है जो दिया है बुक में, आप उसको ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी के तो एग्जांपल्स हमें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं, वो याद रखने हैं बिल्कुल। तो इसका एक सेकेंड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ठीक है, HI ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड, ओके, ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड। वो भी इसका एग्जांपल है। तो रिएक्शन आप नोट कर लेंगे, रिएक्शन दी नहीं गई है बुक में, लेकिन फिर भी जब HI को हम डिकम्पोज करते हैं और गोल्ड अपना कैटलिस्ट होता है, AU है यहाँ पर, तो हमें H2 मिलता है और I2 मिलता है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो दिखने में तो लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर 2 तो है, लेकिन जब रेट लिखोगे तो R इज़ इक्वल टू K और यहाँ पर आपका HI आ जाएगा और इसका जो ऊपर ऑर्डर आप लगाओगे वहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लेकिन यहाँ पे लिखोगे आप 0, ठीक है ना। तो एक सेकेंड एग्जांपल हो गया। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो नंबर लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वो ऑर्डर के बराबर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी होती है जो हमें सॉल्व करके पता करना पड़ता है। ये सब स्टूडेंट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में है। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो है वो है स्टूडेंट्स का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ का ज़रूर ध्यान रखें। इसमें ये जो ग्राफ था इसको आप ज़रूर देख लें, बहुत बार पूछा जाता है ग्राफ ये वाला। इस ग्राफ का थोड़ा सा ध्यान रखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। और यहाँ पे ये टाइम है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो। और स्लोप कितना आता है, नेगेटिव का आता है, माइनस के स्लोप होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के वर्सेस और टाइम के वर्सेस, R वर्सेस T से प्लॉट किया जाता है, स्लोप अपना K आ जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और बहुत ही जल्दी आपको मैं फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ क्या रहेगा, इक्वेशन क्या रहती है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और इसमें भी खैर इतना ही नहीं है, अब जो ये इक्वेशन है इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका एक मेन फार्मूला और है जो आपको मिल जाएगा। मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ नीचे। तो फार्मूला आपका हो जाता है K इज़ इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T, ठीक है। ये फॉर्मूला तब आएगा जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।